जी, अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam, sir. Okay, so we start with our class. Abdul Wahid is as usual late. So, uh, if you remember, we were covering the aeromicrobiology, and today we will continue with the same topic. And last time, if you remember, we finished with the basics of aeromicrobiology, and I just introduced you the extramural and intramural microbiology. Can you see my screen? No, sir. No? नहीं sir, अभी नहीं show हुई। नहीं शो हुई। Okay, I try it again. जी, अभी आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी sir. Okay. So today we are going to discuss the extra and intramural microbiology. If you remember, last time I described briefly the extramural aeromicrobiology. Extramural is actually, you can say, an English word means the external, like if you get some funding from outside the university, it is called as extramural funding. So extramural aeromicrobiology is the study of microorganisms associated with outdoor environments, right? So दो ही possibilities हो सकती हैं, indoor या outdoor. जो आउटडोर इन्वायरमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी होगी दैट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्राम्यूरल एरोमाइक्रोबायोलॉजी, और जो इनडोर इन्वायरमेंट में एरोमाइक्रोबायोलॉजी होगी दैट विल बी कॉल्ड एज इंट्राम्यूरल माइक्रोबायोलॉजी. So extramural aeromicrobiology is the study of microorganisms associated with outdoor environments. It includes the spread of agricultural pathogens, the spread of airborne pathogens associated with waste environments and germ warfare. So extramural aeromicrobiology में जो agricultural के pathogens हैं, how they are spread, those are included. For example, rust अगर एक फील्ड में आ जाए तो वो सारे एरिया में फैल जाती है, ठीक है. Similarly, the spread of airborne pathogens associated with waste environment and germ warfare, कि आप वेस्ट इन्वायरमेंट से जो पैथोजेंस हैं वो सारे इलाके में फैल जाते हैं, या जर्म वारफेयर में जानबूझ के वो इसको रिलीज करते हैं पैथोजेंस को, जो फिर एक जगह पे रिलीज कर दिए जाते हैं और वो सारी इन्वायरमेंट में फैल जाते हैं, ठीक है. और मे बी दी एरोसोलाइजेशन ऑफ इंडिजिनस सॉइल पैथोजेंस, कि जो सॉइल के अंदर पैथोजेंस मौजूद हैं वो एयर में चले जाते हैं ड्यू टू वन और दी अदर रीजन. ऑल दिस इज इंक्लूडेड इन दी extramural aeromicrobiology. Just for example, influenza pandemics, you know the आज का तो ये कोरोना है, कोरोना से पहले जो था ये बर्ड फ्लू था, स्वाइन फ्लू था, ये सारे जो थे ये क्या थे, ये एरोमाइक्रोबायोलॉजी से फैलते थे, ठीक है. ये इतनी इतनी इनसे डेथ हुई है, ठीक है. स्वाइन फ्लू से अब अप्रॉक्सीमेटली 18,000 डेथ्स हो चुकी हैं, ठीक है. और ये वो टाइप है जो इसकी थी, जो पैथोजन था, ठीक है. लेटेस्ट स्वाइन फ्लू था जो 2009-10 में आया था, उसके बाद सार्स आया, और अभी भी जो ये कोविड है इसको भी सार्स से ही रिलेट किया जाता है, इसलिए कि सार्स भी वो क्या कहते हैं रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, और ये जो है ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करता है. So all that is spread through air, so that's why it is called as extramural microbiology, how the pathogens
They are spread in the outdoor environment. What is the microbiology in the clouds? This is a relatively new concept. The microbes, they can potentially affect meteorological processes. In particular, some microorganisms called as ice nucleators. Ice nucleators, they have the ability to efficiently catalyze ice formation and may play a role in the formation and precipitation within clouds. So ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये एरोसोल्स की फॉर्म में एयर में होते हैं और एयर में ये आइस न्यूक्लिएटर का काम करते हैं. मीन्स के they catalyze the ice formation and may play a role in the formation and precipitation within clouds. क्लाउड्स के अंदर ये बारिश के कतरे और फिर आइस वगैरह बनने में ये रोल प्ले करते हैं. एंड बेस्ड ऑन रीसेंट स्टडीज 95% ऑफ आइस न्यूक्लियाई आर बायोलॉजिकल पार्टिकल्स. उनमें से 95% जो आइस न्यूक्लिएटर्स हैं, आइस न्यूक्लियाई हैं, वो बायोलॉजिकल पार्टिकल्स हैं. एंड एट लीस्ट 40% ओरिजिनेट फ्रॉम बैक्टीरिया. और कम से कम 40% जो इसमें से हैं वो बैक्टीरिया से ओरिजिनेट होते हैं. एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन बोथ क्लाउड्स एंड फॉग. एग्रीकल्चर में कैसे माइक्रोबायोलॉजी रोल प्ले करती है? सो द कंटेमिनेशन ऑफ क्रॉप्स एंड एनिमल्स वाया बायोएरोसोल्स has huge economic impact. For example, wheat rust fungi. For example, सिंध में रस्ट की डिजीज फैलती है और अनफॉर्चुनेटली जो हवा चलती है उसका रुख पंजाब की तरफ हो जाता है, तो वो रस्ट फैल के सारे पंजाब तक पहुंच सकती है. ठीक है. सो इस तरह से कोई भी डिजीज जिसके पैथोजेंस एयरबॉर्न हैं तो वो एरोसोलाइजेशन के जरिए सारे एरिया में फैल सकती है. इसकी टिपिकल एग्जांपल इज द वाइट रस्ट फंजाई. एग्रीकल्चर के अलावा सिमिलरली वेस्ट डिस्पोजल में भी एरोमाइक्रोबायोलॉजी और एरोसोलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट because the major hazards associated with waste effluents are pathogenic microorganisms including bacteria, viruses and protozoa. So जहाँ पे वेस्ट एफ्लुएंट, ये गटर का सीवरेज का पानी डाल रहे हैं, वो आप देखते हैं वहाँ पे कि वहाँ से एरोसोल्स उठ रहे हैं जो एयर में जा रहे हैं. Those aerosols may contain certain microorganisms such as bacteria, viruses and protozoa which can spread in the air and then can spread to the other human beings. The other aspects of treatment process such as composting and land disposal are also associated with the generation of aerosols containing pathogens. So आप जहाँ पे ये सीवरेज वाटर की ट्रीटमेंट करते हैं वहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि वहाँ पे भी जब वो पानी गिर रहा होता है तो उससे डिफरेंट एरोसोल्स एयर में जा रहे होते हैं जो कि वो डिजीज़ काज कर सकते हैं. सिमिलरली कंपोस्टिंग के लिए जब आप वेस्ट मटेरियल आपने रखा होता है तो उसमें से भी सर्टन पैथोजेंस, स्पोर्स, दोज कैन स्प्रेड टू द एयर थ्रू एक्स्ट्राम्यूरल एरोमाइक्रोबायोलॉजी. Germ warfare is another example of extramural microbiology. The biological warfare actually has been combat weapons for centuries. सदियों से लोग बायोलॉजिकल वारफेयर को यूज कर रहे हैं और इवन 1336 में जो तातारी थे, they were besieging the walled city of काफा. काफा के शहर का मुहासरा किया हुआ था इन्होंने. और इन्होंने क्या किया कि वो लोग मुहासरा मीन्स वो बाहर नहीं आ रहे थे, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ऐसे बॉडीज जिनको प्लेग जो डिजीज होती है, ताउन जिसे कहते हैं, वो बीमारी हुई थी, ऐसे डेड बॉडीज जिनको प्लेग की डिजीज लगी थी विच इज़ वेरी इन्फेक्शियस,
ऐसे बॉडीज उन्होंने किसी तरह से उस किले के अंदर फेंक दिए, जिससे खौफजदा होके उन लोगों ने फिर किला खोल दिया, क्योंकि अदरवाइज वो डिजीज सारे फैल जानी थी। और ये 1990s की, तो आप जानते हैं इराक वाज इन्वेस्टिगेटेड ऑफ हैविंग प्रोडक्शन फैसिलिटीज फॉर बायोलॉजिकल वारफेयर एजेंट, कि इराक में भी सो कॉल्ड इंस्पेक्टर्स भेजे गए थे जिन्होंने पहले इंश्योर किया था कि वहाँ पे बायोलॉजिकल वारफेयर एजेंट्स नहीं हैं, तब अमेरिका ने वहाँ पे अटैक किया था। ठीक है, so this was about the extramural microbiology. Similarly is the intramural microbiology. So intramural microbiology is indoor environment. The home and workplaces are of major public health concerns. Even आजकल भी आप देखते हैं कि ये कहा जा रहा है जी कि खुली जगह पे रहें, जिस कमरे में आप रह रहे हैं उसकी खिड़कियां खोलें, उसकी वेंटिलेशन का इंतज़ाम करें। ठीक है, सो इसलिए कि आजकल हम खौफजदा हैं कि कोरोना ना हो वहाँ पे। ठीक है, so the home and workplace are of major public health concerns. Indoor environments have limited circulation of external air and much less UV radiation exposure. So UV radiation can help in killing the pathogens if are present over there. So indoor environment में एक तो external air की वजह से वो dilution नहीं होती है उनकी, दूसरा UV radiation वहाँ पे कम होती है जिसकी वजह से वो किल नहीं होते हैं। ठीक है, इस वजह से इंडोर इन्वायरमेंट जो है उसमें रहने वाले जो लोग होते हैं वो ज़्यादा एक्सपोज होते हैं। Controlled temperature and relative humidity that allow extended microbial survival. Actually होता क्या है इंडोर या इंट्राम्यूरल माइक्रोबायोलॉजी में, एक तो वहाँ पे टेम्परेचर आमतौर पे कंट्रोल होता है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है वो सूटेबल होती है। ये दो चीज़ें हैं एक्चुअली जो वहाँ पे बायो एरोसोल्स की सर्वाइवल में हेल्प करती हैं, जिससे वहाँ पे एक्सपोजर ज़्यादा होती है। बिल्डिंग्स में क्या होता है, बिल्डिंग्स में the factors which influence bioaerosols in the buildings, those are the presence or efficiency of air filtering devices. क्या वहाँ पे एयर फिल्टरिंग डिवाइसेस मौजूद हैं? अगर वहाँ पे एयर फिल्टरिंग डिवाइसेस मौजूद हैं तो बाहर से कम कंटेमिनेटेड एयर अंदर नहीं आएगी। या अदर वे राउंड भी हो सकता है कि अगर अंदर कंटेमिनेटेड है तो आप बाहर भी जो एयर जा रही है वो फिल्टर करते जा रही है, तो दैट इज इवन बेटर। द डिज़ाइन एंड ऑपरेशन ऑफ द सर्कुलेशन सिस्टम, आपकी बिल्डिंग का डिज़ाइन कैसा है कि वहाँ पे क्या प्रॉपर एयर सर्कुलेशन का सिस्टम है। द हेल्थ एंड हाइजीन ऑफ द ऑक्यूपेंट्स, उस बिल्डिंग में जो लोग रह रहे हैं उनकी हेल्थ या सफाई का निज़ाम कैसा है। अगर वहाँ पे जैसे आजकल मिसालें दे रहे हैं, अगर उनमें 10 बंदे कोरोना के पेशेंट हैं तो चांसेस हैं कि दूसरे भी कंटेमिनेट हो जाएंगे। सो इसीलिए बिल्डिंग में एंटर होते वक्त वो कहते हैं उनको टेम्परेचर देख लें, मास्क लगा लें, तसल्ली कर लें, सैनिटाइज करवा लें कि वो हेल्दी हैं, तब उनको बिल्डिंग में जाने दें। देन द अमाउंट ऑफ क्लीन एयर सर्कुलेटेड, वहाँ पे क्लीन एयर आप कितनी सर्कुलेट कर रहे हैं ताकि वहाँ पे थ्रेशोल्ड या आप कह लें जो एक्सपोजर का लेवल है, जो अगर वहाँ पे कोई बायो एरोसोल्स कोई पैथोजेंस हैं तो उनका लेवल जो है वो कम हो जाए। टाइप ऑफ लाइट यूज, वहाँ पे लाइट कौन सी यूज हो रही है, क्या वहाँ पे यूवी रेडिएशन का कोई इंतज़ाम है, वहाँ पे सनलाइट है या नहीं है। द एम्बियंट टेम्परेचर इन द बिल्डिंग, बिल्डिंग में टेम्परेचर क्या है, क्या वो सूटेबल टेम्परेचर है फॉर द पैथोजेंस और नॉट सूटेबल। अगर सूटेबल है तो पैथोजन ज़्यादा सर्वाइव करेंगे, नहीं है तो कम सर्वाइव करेंगे। देन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी अफेक्ट्स द बायो एरोसोल्स और द सर्वाइवल ऑफ बायो एरोसोल्स। Some pathogens are uniquely adapted
for survival and transmission in the indoor environment. कुछ पैथोजेंस ऐसे होते हैं कि वो होते ही ख़ास तौर पे सर्वाइव भी इंडोर इन्वायरमेंट में करते हैं और ट्रांसमिशन भी उनके इंडोर इन्वायरमेंट में ही होती है, सच एज लेगियोनेला न्यूमोफिला जो है, ये जो डिजीज़ काज करता है ये पैथोजन, वो है लेगियोनेरिस डिजीज़ और लेगियोनोलोसिस और पॉन्टिएक फीवर। ये डिजीज़ के नाम हैं जो इस ऑर्गेनिज्म से काज होते हैं और ये इंडोर इन्वायरमेंट में पाया जाता है। ये बिल्डिंग्स की बात की। इसी तरह से स्पेस फ्लाइट जो होती है, those can also be associated with the microorganisms. So microorganisms are associated with almost every aspect of life, including spacecrafts. Some microorganisms are beneficial and some are pathogenic. So space flight में कुछ microorganisms beneficial होते हैं, कुछ pathogens हो सकते हैं। जो beneficial हो सकते हैं वो किस लिए उनको यूज़ किया जा सकता है? Those can be harnessed for valuable purposes like food production. फूड प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जा सकता है, ऑक्सीजन प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जा सकता है, वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है या एयर प्योरिफिकेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। सो इनकी स्पेस फ्लाइट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सर्टेन बेनिफिट्स भी ली जाती हैं। Biological air filtration is actually a method of air purification. So what are the biological air filters? So this uses microbes for the removal of organic contents. Actually ये कैसे काम करता है biological air filtration, ये मैं explain करता हूँ। ये एक dual phase air purification system होता है। Dual phase का मतलब है liquid और gaseous phase, दोनों phases होती हैं। और कैसे ये काम करता है? That operates by diffusion of air pollutants out of the vapor. अब गैसियस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में ये मूव करता है एयर वेपर फेज या एयर फेज से थ्रू द गैस परमिएबल मेम्ब्रेन। एक गैस परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई होती है जिसमें से ये मूव करता है, ठीक है, एंड इनटू द लिक्विड फेज। और आगे कहाँ जाता है? लिक्विड फेज में, where the biofilm containing specialized microbial communities is able to degrade them. ठीक है, ये कुछ जो पैथोजेंस होते हैं वो तो जो वो परमिएबल मेम्ब्रेन है वहीं पे वो स्टॉप हो जाते हैं, जो आगे गुजर जाते हैं वहां से भी आगे लिक्विड फेज होती है। उस लिक्विड फेज के अंदर बायोफिल्म होती है, जिसमें बायोफिल्म आप समझते हैं, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है क्या होती है। सो बायोफिल्म में ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो उन कंटेमिनेंट्स को जो अब लिक्विड में आ गए हैं उनको डिग्रेड करने की एबिलिटी रखती है। सो इस तरह से ये उसको डिग्रेड कर देते हैं, ठीक है। सो दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल एयर प्योरिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। समझ आ गई है इसकी कि इसको कैसे करना है कि वो एयर की थ्रू पहले कुछ एरोसोल्स वहाँ पे रुक जाते हैं जो फिर भी आगे चले जाते हैं लिक्विड फेज में। वहाँ पे बायोफिल्म होती है जिसमें ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इसको डिग्रेड करते हैं, तो वो इसको डिग्रेड कर देते हैं। दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल एयर फिल्ट्रेशन। हाउ पब्लिक हेल्थ इज affected through intramural microbiology or indoor microbiology. Pathogens in the aeromicrobiological pathways can be potential source of disease, but aeromicrobiological pathway also has potential for use in immunization against diseases like influenza, ठीक है। अब एक इंडोर इन्वायरमेंट में अगर किसी को जुकाम है, फॉर एग्जांपल हम जुकाम ही की मिसाल लेते हैं, किसी को जुकाम है और वो वहाँ पे स्नीज करता है, तो वो जो पैथोजेंस हैं वो बायोएरोसोल्स की फॉर्म में उस इन्वायरमेंट में स्प्रेड हो जाते हैं। और वो क्योंकि इंडोर इन्वायरमेंट है इसलिए वो वहाँ पे डिल्यूशन नहीं होती है, लिहाजा
वहाँ पे जो दूसरे बंदे मौजूद हैं वो भी इन बायो एरोसोल्स को इंजेस्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, सो एरोमाइक्रोबायोलॉजिकल पाथवे, इसमें सारी चीज़ें शामिल हैं, लॉन्चिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड डेपोजिशन। सो एरोमाइक्रोबायोलॉजिकल पाथवे अगर इस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है तो इसको इम्यूनिटी क्रिएट करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट आप ऐसी स्प्रे आप वहाँ पे कर दें जो फिर सब लोगों में इम्यूनिटी क्रिएट कर दे इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट। फ्लू वैक्सीन इज डिलीवर्ड बाय नेजल स्प्रेज। ठीक है, ऐसी वैक्सीन आ गई है जो आपके नाक में स्प्रे कर देते हैं जिससे आपको फ्लू नहीं होता है। हॉस्पिटल्स एंड लेबोरेटरीज भी इंडोर इन्वायरमेंट की एग्जांपल हैं। These have the potential for the aerosolization of pathogenic microorganisms. इनमें तकरीबन हाईएस्ट रिस्क या चांस होता है कि पैथोजन जो हैं वो एरोसोलाइज हो जाएं, मींस वो एयर में सस्पेंड होके दूसरे लोगों को अफेक्ट करें। बिकॉज यहाँ पे पैथोजन्स होने का चांस ज़्यादा होता है, सो इसलिए उनकी एरोसोलाइजेशन का चांस भी ज़्यादा होता है। या ऐसे सेंटर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स विद डिजीज़, जहाँ पे डिजीज़ वाले पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है, वहाँ पे भी एरोसोलाइजेशन का चांस ज़्यादा होता है। सो माइक्रोबायोलॉजिकल लेबोरेटरी इज आल्सो ए ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर पैथोजेनिक एजेंट्स। जो माइक्रोबायोलॉजी की लेबोरेटरी है जिसमें पैथोजेंस पे काम हो रहा है, वो भी पैथोजेनिक एजेंट्स की मल्टीप्लिकेशन की एक रीज़न हो सकती है। फिर इस इंडोर इन्वायरमेंट में बायो एरोसोल्स, ये हमने कहा कि कैसे कैसे आ सकते हैं, इनको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। हाउ द बायो एरोसोल्स कैन बी कंट्रोल्ड। द मैकेनिज्म्स इंक्लूड, ये वो मैकेनिज्म्स हैं, हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे। वेंटिलेशन, फिल्ट्रेशन, बायोसाइडल कंट्रोल और फिजिकल आइसोलेशन। ठीक है, इनको हम वन बाय वन देखते हैं। वेंटिलेशन क्या है? वेंटिलेटर, इट इज क्लियर फ्रॉम द नेम इवन, it is the method most commonly used to prevent the accumulation of airborne particles. इसलिए वेंटिलेटर्स, जिन्हें आप रोशनदान कहते हैं, घरों में रखे जाते थे ताकि बाहर से ताज़ा हवा आए और अंदर प्रॉपर जो क्या कहते हैं एरोसोल्स एक्यूमुलेट ना हो, बल्कि बाहर से फ्रेश एयर भी आती रहे और इस तरह से वहाँ पे अंदर नेट जो है एक्यूमुलेशन पैथोजेंस की ना हो, बल्कि वो डाइल्यूट होती है, टू प्रिवेंट द एक्यूमुलेशन ऑफ एयरबॉर्न पैथोजेंस। This mechanism involves creating a flow of air through areas where airborne contamination occurs. So ऐसे एरियाज जहाँ पे एयरबॉर्न कंटेमिनेशन हो सकती है, वहाँ पे ऐसा फिर सिस्टम रखा जाता है कि वहाँ से एयर फ्लो करती है, कि एक तरफ से एंटर होती है और दूसरी तरफ से निकलती जा रही होती है, ताकि वो रिप्लेस होती रहे, वहाँ पे बायो एरोसोल्स एक्यूमुलेट ना हो सके। It relies on mixing of internal air with external air to reduce the concentration of airborne particles. ठीक है, जैसे मैंने पहले कहा कि इंटरनल एयर के साथ एक्सटर्नल एयर को मिक्स किया जाता है ताकि अंदर कंसंट्रेशन ऑफ एयरबॉर्न पार्टिकल ज़्यादा ना हो सके। लेकिन इसका अपोजिट भी हो सकता है कि इन सम केसेस द एडिशन ऑफ एक्सटर्नल एयर कैन एक्चुअली इंक्रीज एयरबॉर्न पार्टिकल्स, कि आपकी जो बाहर की एयर है वो ज़्यादा कंटेमिनेटेड है, तो आप तो बाहर की एयर को अंदर लेके आ रहे हैं, तो बजाय फ़ायदा पहुंचाने के उल्टा नुकसान पहुंचा रही है। तो आपको इस चीज़ का भी ख्याल करना होगा कि जो आपकी एक्सटर्नल एयर है दैट शुड बी क्लीन एयर, फिर आप उसको सर्कुलेट करें। Then the second option is filtration, कि आप यूनिडायरेक्शनल एयर फ्लो फिल्ट्रेशन का इंतज़ाम करें, विच इज़ ए relatively simple and yet effective method for control of airborne contamination. आपने लैमिनर फ्लो हुड देखा होगा, जिसमें बैठ के ये माइक्रोबायोलॉजी वाले काम करते हैं। अब लैमिनर फ्लो हुड में क्या होता है,
उसमें यूनिडायरेक्शनल एयर फ्लो सिस्टम होता है, जिसमें इधर रख यूनिडायरेक्शनल एयर फ्लो सिस्टम होता है, जिसमें विच इज सिंपल मेथड। एंड क्या होता है इसमें कि जो एयर है एक डायरेक्शन में मूव कर रही होती है। जैसे लैमिनर फ्लो हुड में दो ऑप्शंस होती हैं, या ऊपर से एयर नीचे आ रही है या अंदर से बाहर की तरफ आ रही है। वो क्या करती है, वो यूनिडायरेक्शनल एयर फ्लो does not allow the air from outside to enter inside that environment। जैसे अगर आप लैमिनर फ्लो हुड पे काम करते हैं तो वहाँ ऊपर से नीचे को अगर एयर आ रही है तो उसका प्रेशर इतना होता है कि वो हुड से बाहर की जो एयर है उसको अंदर नहीं जाने देती है। लिहाजा अंदर की जो एयर है वो क्लीन रहती है, वो फिल्टर होके आ रही होती है। ठीक है, सो इस तरह से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं कंटेमिनेशन से। या हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर, हीपा फिल्टर्स जिन्हें कहते हैं, these are reported to remove virtually all infectious particles। ये जो लैमिनर फ्लो होते हैं इनमें ये हीपा फिल्टर लगे होते हैं। ये हीपा फिल्टर क्या करते हैं, ये तकरीबन जितने इन्फेक्शियस पार्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, आपकी जो हाई रिस्क लेबोरेटरीज होती हैं माइक्रोबायोलॉजी की, वहाँ पे भी कोई एयर अंदर से बाहर नहीं जा सकती, बाहर से अंदर नहीं आ सकती, unless it is treated or it is passed through HEPA filter। ठीक है, these type of filters are commonly used in biological safety hoods। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये जो लैमिनर फ्लो हुड होता है इसी को बायोलॉजिकल सेफ्टी हुड कहते हैं। Then is the biocidal control। Biocidal control क्या है? It represents an added treatment that can be used to eradicate all airborne microorganisms, ensuring that they are no longer viable and capable of causing infection। For example, superheating and UV radiation। इसमें क्या करते हैं कि जितने भी एयरबॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी कोई ट्रीटमेंट की जाती है कि इंश्योर हो जाए कि वो मर गए हैं, अब वायबल नहीं हैं और अब वो इन्फेक्शन काज नहीं कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लैमिनर फ्लो हुड की ही मिसाल ले लेते हैं। नॉर्मली जो लैमिनर फ्लो हुड होते हैं उनमें एक प्रोविजन होती है कि उनके अंदर यूवी लाइट लगी होती है। तो जब आपने उसमें काम करना होता है तो आप उससे आधा घंटे पहले उस यूवी लाइट को ऑन कर देते हैं, ताकि उसके अंदर के इन्वायरमेंट में ऑलरेडी अगर कोई पैथोजन मौजूद है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है, तो वो किल हो जाए उस यूवी लाइट की वजह से। उसके बाद आप उस यूवी लाइट को ऑफ करते हैं और फिर आप अपना काम शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो यूवी लाइट आपने खुद उसको एक्सपोज नहीं होना होता, सो इसलिए उसको अपना काम शुरू करने से पहले आप ऑफ कर देते हैं। या ये भी हो सकता है कि आप वहाँ पे सुपर हीटिंग कर दें, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई करें उस एनवायरनमेंट का, ताकि वहाँ पे अगर कोई पैथोजेंस हैं तो वो किल हो जाए। ठीक है, सो जो भी एरोसोल्स वहाँ पे मौजूद हैं उनको मारा जाता है प्रैक्टिकली, ताकि उनके इन्फेक्शन काज करने का चांस ना रहे। अल्ट्रावायलेट जर्मिसाइडल रेडिएशन UVGI has been shown to be able to control many types of pathogens। So जो UV रेडिएशन है इससे बहुत सारे जो पैथोजेंस हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन हो सकती है आइसोलेशन की। आइसोलेशन अब आजकल बड़ा कॉमन लफ्ज है। इट इज द इनक्लोजर ऑफ एन एनवायरनमेंट through the use of positive or negative pressurized air gradients and airtight seals। इसमें जहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस होता है कि ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है, तो फिर आइसोलेशन, जैसे हॉस्पिटल्स में आइसोलेशन वार्ड्स क्रिएट की जाती हैं। आजकल कोरोना के लिए आइसोलेशन वार्ड्स क्रिएट की जाती हैं कि वहाँ पे हेल्दी पीपल नहीं जाते हैं, अगर उन्होंने जाना है तो वो प्रॉपर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ करके, मास्क, ये ग्लव्स और वो ग्लासेस
और पूरे वो क्या होते हैं लैब कोट वगैरह पहन के वो उसमें एंटर होते हैं और प्रॉपर प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं उस इन्वायरमेंट में एंटर होने से पहले। नॉर्मल बंदे को वहाँ पे एंटर नहीं होने दिया जाता ताकि वो इस वहाँ पे जो इन्फेक्शियस पैथोजेंस या एरोसोल्स हैं वो उससे अफेक्ट ना हो सकें। सो कॉमन लोगों को वहाँ पे नहीं जाने दिया जाता। अब इसमें दो ऑप्शन होती हैं, या तो वहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर रखा जाता है यहाँ पे वो, या वहाँ पे नेगेटिव प्रेशराइज्ड एयर ग्रेडियंट रखा जाता है कि बाहर की हवा अंदर आने ही नहीं दी जाती। जो अगर आप किसी बहुत हाई टेक लैब में विजिट करने का अगर कभी आपको इत्तेफाक हो तो उसमें ऐसे होता है कि जनरली ये हमारे यहाँ पे भी यूनिवर्सिटी में काफ़ी देर से बन रही है लेकिन कंप्लीट नहीं हो पा रही है। जो कैब की बिल्डिंग है इसके पीछे एक बिल्डिंग है वो BSL-3 बायो सेफ्टी लेवल 3 की लैब बन रही है लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली अभी कंप्लीट नहीं हुई। कुछ सिस्टम उसमें लग चुके हैं लेकिन अभी वो कंप्लीट नहीं हुई। उसमें क्या होता है किसी भी जो ऐसी लैब होती है जहाँ पे हाई रिस्क होता है वहाँ पे हमेशा डबल डोर्स होते हैं। एक डोर डायरेक्ट लैब में नहीं खुलता है, एक डोर खोलते हैं तो आप एक छोटी सी गैलरी आती है और वहाँ पे प्रेशर ऐसा सेट किया हुआ होता है कि उससे अगला दरवाज़ा तब ही खुलेगा जब पिछला दरवाज़ा बंद हो जाएगा। जब पिछला दरवाज़ा बंद हो जाता है तो अगला दरवाज़ा खुलता है और आप अंदर जाते हैं। उसका प्रेशर डिफरेंट होता है, फिर वहाँ से एयर बाहर नहीं आ सकती। सो इस तरह से प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से, जिसे HVAC सिस्टम कहते हैं हम, उस प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से एयर की बाहर से अंदर या अंदर से बाहर जाने का जो सिस्टम है उसको क्लोज किया गया होता है। एयर टाइट सील्स होती हैं जिनकी वजह से वहाँ से एयर अंदर बाहर नहीं हो सकती। This type of system is designed to protect other people in the hospital from the pathogens, such as Mycobacterium tuberculosis, जो टीबी की वार होती है वहाँ पे आम लोगों को नहीं जाने दिया जाता। That is present inside the isolation area, के आइसोलेशन एरिया के अंदर जो पेशेंट्स मौजूद हैं वो दूसरे लोगों को इन्फेक्ट ना कर सकें, इसलिए उनको आइसोलेटेड एरिया में रखा जाता है। Air from these rooms is exhausted into the atmosphere after passing through a HEPA filter and biocidal control chamber. So ऐसे फिर जो एरियाज होते हैं वहाँ से जो एयर है उसको बाहर जब निकालते हैं तो वो एयर वहाँ से एग्जॉस्ट करके बाहर HEPA फिल्टर के थ्रू एग्जॉस्ट की जाती है। एक दफ़ा HEPA फिल्टर से गुजरती है और आगे बायोसाइडल कंट्रोल चैम्बर होता है, ठीक है, जिसमें उस एयर को फर्दर ट्रीट किया जाता है किसी बायोसाइडल के साथ। वो यूवी लाइट हो सकती है या हाई टेम्परेचर हो सकता है या कोई केमिकल ट्रीटमेंट हो सकती है ताकि अगर अभी भी उसमें कोई एरोसोल बचा है तो उसको मार दिया जाए। फिर उस एयर को बाहर निकाला जाता है फ्रेश एयर में। Okay, so this was the control of bioaerosols. Then what is biosafety in the laboratory? There are 4 biosafety levels. First being the lowest level of control and fourth being the highest level of control. जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट बायोसेफ्टी के लेवल्स हैं, इसी तरह से केमिकल्स के अगेंस्ट भी बायोसेफ्टी के लेवल्स हैं। सो बायोसेफ्टी लेवल 1, 2, 3 ऐसे लैब्स होती हैं कि जहाँ पे जो बहुत ख़तरनाक केमिकल्स होते हैं उन पे काम करना होता है, तो फिर हाई सेफ्टी लेवल चाहिए। इसी तरह से जहाँ पे आपने पैथोजेंस पे काम करना है तो वहाँ पे आपको हाईएस्ट लेवल ऑफ बायोसेफ्टी चाहिए। सो 4 लेवल्स होते हैं। 1 जो है वो लोएस्ट लेवल ऑफ कंट्रोल है और 4th जो है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ बायोसेफ्टी है। सो बायोसेफ्टी कैबिनेट्स क्या होती हैं? ये जो जिसे हम लैमिनर फ्लो हुड भी कहते हैं, द मोस्ट कॉमनली and effectively used biological containment devices in laboratories that work with infectious agents. ऐसी लैब्स जहाँ पे infectious agents पे काम किया जाता है वहाँ पे फिर
लैमिनर फ्लो हुड टाइप कैबिनेट्स होती हैं, ठीक है। उन कैबिनेट्स में क्या है कि उन कैबिनेट से कैबिनेट के अंदर वो क्या कहना चाहिए, इन्फेक्शन फ्री इन्वायरमेंट होती है। जैसे अभी हमने कहा था कि लैमिनर फ्लो हुड में वो लैमिनर एयर फ्लो होता है, यूवी लाइट लगी होती है, तो उसके अंदर जो हिस्सा होता है दैट इज़ फ्री ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट। सो वहाँ पे फिर बायोसेफ्टी कैबिनेट यूज़ की जाती है। जो क्लास 2 की कैबिनेट्स होती हैं, इनमें नेगेटिव प्रेशर होता है विद इन द कैबिनेट दैट डज नॉट अलाउ आउटसाइड एयर टू एंटर इनटू दैट। एंड क्लास 3 जो होती है, ये टोटल कंटेनमेंट होती है। आपको जो मैंने बुक दी है उसमें आप तस्वीरें देख सकते हैं। टोटल कंटेनमेंट है ये कि सिर्फ आप उसके अंदर ही ग्लव्स होते हैं, आप अपने बाजू उन ग्लव्स में डालते हैं और अंदर ही आपका मुंह या हाथ कोई चीज़ अंदर नहीं जाती है, वो ग्लव्स के थ्रू अंदर अंदर ही आप काम कर लेते हैं। टोटल कंटेनमेंट होती है, कोई चांस नहीं होता है कि वहाँ पे आपको इन्फेक्शन हो सके। So biosafety in the laboratories, microbiological laboratories and specialized equipment used in these labs are designed to control the spread of airborne microorganisms, to prevent the exposure of workers and the surrounding environments to biohazards, ठीक है। सो माइक्रोबायोलॉजी की जो लैब्स होती हैं उसमें स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं और स्पेशलाइज्ड अरेंजमेंट्स होती हैं जो कंट्रोल करती हैं स्प्रेड ऑफ एयरबॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ताकि वहाँ पे जो दूसरे लोग काम कर रहे हैं सराउंडिंग एनवायरनमेंट में वो इसकी इन्फेक्शन से बच सके। There are essentially 4 levels of biocontrol. वो 4 लेवल हैं termed as biosafety levels 1 to 4। अभी मैंने पिछली स्लाइड में भी बताया था। 1 जो है वो लोएस्ट लेवल है, मतलब जहाँ पे सेफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे काम किया जाता है वो बायोसेफ्टी लेवल 1 होगा। जहाँ पे उससे ज़रा खतरनाक वो 2 होगा, जहाँ उससे खतरनाक वो 3, और 4 वो लेवल होगा जो बहुत ही खतरनाक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन पे काम किया जाता है जहाँ पे। सो बायोसेफ्टी लेवल 1 इंडिकेट लेबोरेटरीज where well characterized agents that are not associated with disease in healthy adult humans are handled, such as teaching laboratory। मिसाल के तौर पे टीचिंग लेबोरेटरी है तो वहाँ पे किसी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे काम नहीं किया जा सकता जो डिजीज काज कर सकता है, ठीक है। सो दोज आर बायोसेफ्टी लेवल 1। बायोसेफ्टी लेवल 2 क्या है? It indicates an area where work is performed using agents that are of moderate hazard to humans and the environment। कुछ दरमियाना सा खतरा होता है कि वहाँ से इन्फेक्शन हो सकती है। The personnel have specialized training in the handling of pathogens, ठीक है। जैसे अब हमारी माइक्रोबायोलॉजी की लैब है तो इसमें आल दो हम पैथोजेंस पे काम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद जो बच्चे होते हैं जो काम करते हैं उनको हम शुरू में थोड़ी ट्रेनिंग देते हैं कि वो ये ख्याल करें कि जब भी उन्होंने पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डील करना है, पैथोजेंस तो होते नहीं हैं, इवन देन भी अगर उन्होंने आइसोलेशन वगैरह करनी है तो वो ग्लव्स यूज़ करें और मटेरियल को स्टरलाइज करें, डिस्कार्ड करने से पहले उसे ऑटोक्लेव करें, अपने मटेरियल को वॉश करने से पहले ऑटोक्लेव करें ताकि कोई चांस ना हो कंटेमिनेशन का। Many procedures are conducted in biological safety level 2 cabinets और बहुत सारे काम जैसे इनाकुलेशन वगैरह है वो हम फिर बायोसेफ्टी 2 की कैबिनेट के अंदर करते हैं, ओपन बेंच पे नहीं करते। बायोसेफ्टी लेवल 3 क्या है? which deals with the agents that can cause serious diseases as aeromicrobiological exposures are handled। वो हैं जिनमें अगर वो पैथोजेंस एरोमाइक्रोबायोलॉजिकल पाथवे में चले जाएं तो वो सीरियस डिजीज़ काज कर सकते हैं। सो वो बायोसेफ्टी लेवल 3 में आते हैं। और बायोसेफ्टी लेवल 4 में दिस इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ कंट्रोल
microorganisms that have high potential for life-threatening diseases are handled. So इसमें फिर उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डील किया जाता है जो लाइफ थ्रेटनिंग एटीट्यूड रखते हैं। जैसे अब कोरोना वायरस पे अगर किसी ने काम करना है तो बहुत ही ज़्यादा हाई सेफ्टी लेवल की जो लैब होगी उसमें काम करेगा, आम लैब में वो उस पर काम नहीं कर सकता। This is 100% isolated from other areas of the building. ये दूसरी बिल्डिंग से बिल्कुल अलग होती है। And in general, all air into and out of these laboratories is sterilized by filtration and germicidal treatment. इसमें जितनी एयर एंटर होती है या निकलती है वो सारी फिल्ट्रेशन होने के बाद, जर्मीसाइडल ट्रीटमेंट के बाद बाहर निकलती है या अंदर एंटर होती है। इवन यहाँ का जो वेस्ट वाटर होता है वो भी ट्रीट होने के बाद बाहर जाता है। अच्छा, ये तो थी बात हमने की लैब्स की कि लैब्स में सेफ्टी लेवल क्या हो सकता है। अब इसी तरह से जो बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं उनकी भी क्लासिफिकेशन की जाती है कि कौन कितना ज़्यादा हार्मफुल या डेंजरस है। सो इस बेस पे जो क्लासिफिकेशन है वो भी डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं। क्लास 1 में वो ऑर्गेनिजम्स डील किए जाते हैं विच पोज लिटल और नो हैजर्ड अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस ऑफ हैंडलिंग, जो बिल्कुल या तो बिल्कुल उनका कोई रिस्क नहीं होता या बहुत मामूली रिस्क होता है अगर आप उनको आम हालात में भी इस्तेमाल कर लें। ठीक है। और क्लास 2 कौन सी है? एजेंट्स, जैसे इसमें क्लास 1 में आएंगे जो आपके ये एग्रीकल्चरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये राइजोबियम है कि इसका कोई रिपोर्ट नहीं है कि ये कोई प्रॉब्लम काज करता है, तो आप इस पे काम कर सकते हैं नॉर्मल कंडीशंस में। क्लास 2 में वो एजेंट्स या वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स शामिल किए जाते हैं विच हैव लो पोटेंशियल हैजर्ड, जिनका कुछ खतरा होता है कि वो कोई नुकसान काज कर सकते हैं, बट कैन बी कंटेन्ड बाय ऑर्डिनरी लैब टेक्निक्स, लेकिन आप उनको सिंपल लैब टेक्निक्स इस्तेमाल करके उनसे बच सकते हैं कि आप ग्लव्स यूज़ कर लें, गॉगल्स यूज़ कर लें, तो आप उनसे अवॉइड कर सकते हैं। क्लास 3 क्या है? दे रिक्वायर स्पेशल कंटेनमेंट, इनके लिए बहरहाल आपको स्पेशल कंटेनमेंट चाहिए। दे आर एसोसिएटेड विद एरोसोल डिजीज ट्रांसमिशन, सो ये एरोसोल डिजीज ट्रांसमिशन से रिलेट करते हैं। सो इसलिए आपको यहाँ पे स्पेशल सिस्टम चाहिए कि वहाँ से एयर इधर उधर नहीं होनी चाहिए जो कि एरोसोल की फॉर्म में प्रॉब्लम काज कर सके। और क्लास 4 में तो वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक्सट्रीमली हैजार्डस हैं टू लेबोरेटरी पर्सोनल एंड मे काज सीरियस एपिडेमिक डिजीज। वहाँ पे तो चांस ही पैदा नहीं होता कि रिस्क लिया जा सके। ये बड़ी सीरियस एपिडेमिक डिजीज काज कर सकते हैं जैसे कोरोना है। और क्लास 5 वो है विच इज रेस्ट्रिक्टेड फॉरेन पैथोजेंस, ऐसे फॉरेन पैथोजेंस पे काम होता है वहाँ पे जिनकी इंपोर्टेशन, पोजेशन और यूज इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। बाय लॉ ऐसे पैथोजेंस को ना आप इंपोर्ट कर सकते हैं, ना अपने पास रख सकते हैं, ना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए बिल्कुल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। सो ऐसे लोग जो माइक्रोबायोलॉजी में काम करते हैं उन्हें जहन में रखना चाहिए कि वो कभी भी अपनी स्ट्रेन्स को जब ट्रैवल करें अक्रॉस द कंट्री, किसी दूसरे मुल्क में जा रहे हैं बाय एयर, तो ख़ास तौर पे वो मुल्क जो बड़े सेंसिटिव हैं, अमेरिका वगैरह, तो अपनी स्ट्रेन्स को साथ लेके ना जाएं। और अगर आप लेके जाना ही चाहते हैं तो आपको आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए प्रॉपर लैब का कि ये पैथोजेंस नहीं है, अदरवाइज आपके खिलाफ आप अरेस्ट हो सकते हैं। सो मैं एक मिसाल के तौर पे देता हूँ, यहाँ पे एक ये जो म्यूल होते हैं, खच्चर, इनकी एक डिजीज होती है ग्लैंडर्स जिसे कहते हैं। ठीक है, ये एनिमल्स की डिजीज है। तो ये इतनी सीरियस डिजीज होती है कि जिसको ये एनिमल को हो जाए
तो उसको कहा जाता है जी कि इसको फौरन कल कर दें, इसको मारें और मार के आप बरी कर दें, इसकी ट्रीटमेंट करने की कोशिश ही ना करें, ठीक है। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोई कोशिश की इसकी वैक्सीन बनाने की, तो somehow or the other the intelligence agencies, they got that information, and it became very difficult for the university to defend that faculty member कि ये किसी गलत नीयत से उस पर काम नहीं कर रहा था बल्कि सिर्फ रिसर्च ही पर्पस था। तो बहरहाल बाद में उसको उसे क्लोज किया गया फिर, ठीक है। सो ये बहुत ही खतरनाक पैथोजेंस होते हैं, इन पे काम नहीं करना चाहिए। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे जब भी आप काम करें तो आपको उसको प्रॉपरली स्टडी करने के बाद कि इसके लिए आपको कौन सी सेफ्टी मेजर्स चाहिए, ये किस क्लास का बायोलॉजिकल एजेंट है, उसके मुताबिक आपको प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए, फिर काम स्टार्ट करना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ ऑल फॉर दिस चैप्टर। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं इससे पहले कि मैं अगला चैप्टर शुरू करूं। जी, एनी क्वेश्चन? नो सर। नो। अब्दुल वहीद, आपका माइक ठीक हुआ है कि नहीं? ओके, चलें जी। अब्दुल वहीद की तो आवाज़ ही नहीं आनी है मुझे। सो अभी हम फिर अगला चैप्टर करते हैं शुरू। अभी हमारे पास टाइम है 10 मिनट है, नहीं टाइम तो पूरा हो गया है, 10:30 बजे तक थी ना क्लास? जी सर। जी ठीक है, चलें फिर हम नेक्स्ट टाइम शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तो अब नेक्स्ट क्लास हमारी फ्राइडे को फर्स्ट 2 क्लासेस होंगी, ठीक है जी। आज का आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, सी यू ऑन फ्राइडे।